Hello, students. Today, let us begin with the chapter 15 Life Processes in Living Organism. For our convenience, I had divided this lesson into three parts. So, in part 1, we are going to study about transportation in plants. We all know there are varieties of plants and animals present around us. If we compare both plants and animals, then we already know that plants they have restricted movement as compared to that of animals, whereas the energy required by the animal is more as compared to that of the plants they have many dead cell with them, so that's why their energy requirement is little bit less as compared to that of the animal. In lower class, that is in the 8th class, we have studied how the digestion process takes place in living organism, how the food is digested and how it is circulated to all the body parts. So that process we have studied. We have also studied about the respiratory system in human beings. So how the oxygen is inhaled, how it is circulated, and in this way respiratory system also we have studied in detail. So such processes in which the either the material is absorbed or synthesized and it is circulated from one part to another part is known as transportation. So in this way transportation of animals we have studied in detail in the lower class. This year we are going to study in detail about the transportation of water and food in plants. So we have studied in the classification of plants that with the division Pteridophyta, conducting tissues were present in the plant body. These conducting tissues are nothing but the xylem and phloem. So xylem is responsible for conduction of water, whereas phloem is responsible for conduction of food. Now from where this water and food will enter? So water it gets entry from the soil. Soil is the nearest and the richest source which is available to the plants. Soil it consists of various types of minerals, various types of salts and metal ions such as sodium, potassium, magnesium, phosphorus and manganese and so on. So in this way plants they get the minerals from the soil. Now how the transportation takes place in plants. So let us see in detail. So transportation of water it takes place by two processes, root pressure and transpiration pull. This root pressure it is specially observed in small plants, herbs and shrubs. कम हाइट वाले जो पौधे होते हैं उनमें रूट प्रेशर का प्रोसेस यूज किया जाता है. दिस टाइप ऑफ मेथड इज मोर इफेक्टिव एट नाइट क्योंकि इससे पानी पेड़ में ऊपर चढ़ने लगता है तो एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो नाइट में भी ये एब्जॉर्प्शन होता है. वेर एज द सेकेंड प्रोसेस दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल इज ऑब्जर्व्ड मोस्टली इन टॉल प्लांट्स एंड ह्यूज ट्रीज. बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत ह्यूज ट्रीज होती है बरगद के जैसे, तो उनमें ये ट्रांसपिरेशन पुल ऑब्जर्व किया जाता है. ये मेथड जो है ये इट इज़ मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते रहता है कंटिन्यूसली. वाटर मिनरल्स ये रूट्स में से एब्जॉर्ब्ड होके ऊपर चलते रहते हैं. सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वाटर इज transported from one part to another part. Let us study these two processes in detail. Now here you can observe how the transportation takes place by the root pressure. So here students you can observe that the arrows which are shown here, so this arrow it shows that how the water mineral and salts they get entry inside the roots by the way of root hairs. Now once they get entry in the root hair then what will happen, यहाँ पे आपको arrows दिखाए हुए हैं. एक बार जैसे ही पानी की एंट्री हो जाएगी रूट हेयर से इट बिकम्स टर्जिड. टर्जिड यानी क्या, थोड़ा सा फूल जाता है.
आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम किशमिश को रात भर पानी में डुबो के रखें तो सुबह वो ऐसा फूल जाता है. सो दैट स्टेज इज नोन एज टर्जिडिटी. तो इस तरह से ये सेल टर्जिड हो जाते हैं. जैसे ही ये टर्जिड हो जाएंगे ये बाजू वाली सेल पे एग्जर्ट करते हैं प्रेशर और ये पानी फिर एक सेल से दूसरी सेल में एंट्री करता है. अब ये जो सेकेंड सेल टर्जिड हो गया है वो नेक्स्ट एडजेसेंट सेल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा. इस तरह से पानी सेल टू सेल एंट्री होता हुआ यहाँ से आता है एंड इट गेट्स एंट्री इनसाइड द xylem. Once it gets entry inside the xylem, then what happens? This xylem it acts as a पाइपलाइन. जैसे हमारे घरों में पानी की पाइपलाइन होती है कि ऊपर के टैंक से हर घर के पार्ट में पानी पहुंचाया जाता है, वैसे ही जाइलम में ये पानी पहुंचाने का काम ट्यूब जाइलम जो वेसल्स होती है ये करती है. इस तरह से रूट प्रेशर मेथड से अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है रूट्स के थ्रू. सो रूट से स्टार्ट हो रहा है जाइलम तक. तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रूट प्रेशर. तो ये रूट प्रेशर जो है ये जनरली रात के समय भी होती है और ये पानी को पुश अप करने के लिए ऊपर चढ़ाने के लिए यूज की जाती है. वेयर एज द सेकेंड मेथड दैट इज द ट्रांसपीरेशन पुल मेथड. तो ट्रांसपीरेशन पुल मेथड में क्या हो रहा है? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द लोअर क्लास अबाउट द ट्रांसपीरेशन, दैट इज वाटर विच इज लॉस्ट from the aerial part of the plant, that is leaf. लीफ के वेंट्रल सरफेस में हमने देखा किडनी शेप के यहाँ पे स्टोमेटास होते हैं जो गार्ड सेल उन्हें ऑपरेट करता है, उनकी एंट्री और एग्जिट को रेस्ट्रिक्ट करता है. सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाउ द गार्ड सेल इज प्रेजेंट. सो दिस गार्ड सेल इट ऑपरेट्स the entry and exit of the gaseous material and the water vapor in and outside of the leaf surface. Now what will happen? As soon as the water starts evaporating, जैसे जैसे पानी water vapor बन के evaporate होता हुआ जाता है उस बीच में लीफ सरफेस के यहाँ पे गैप तैयार हो जाती है, सक्शन क्रिएट होता है और यहाँ पे पानी जो है ये कम होने लगेगा. टू कंपनसेट दिस वाटर लॉस देन वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम वेसल. इस तरह से जाइलम वेसल रूट से लेके पानी यहाँ तक अगेन लेके आते हैं. अब जैसे जैसे पानी यहाँ आ रहा है यानी कंटिन्यूसली प्लांट्स में से फिर से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है. तो इस तरह से आपने देखोगे कि पानी किस तरह से पहुंच जाएगा प्लांट्स के अंदर में. नाउ इन दिस वे ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है ये बहुत ऊंचाई वाले जो पौधे होते हैं, हाइट वाले पौधे होते हैं, वहाँ तक पानी पहुंच जाता है और इस तरह से ये ड्यूरिंग दिस डे टाइम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. सो कंटिन्यूसली वाटर और मिनरल प्लांट्स में रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब्ड होते रहते हैं और ट्रांसपीरेशन पुल से वो ऊपर तक पहुंचते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स दिस आर द टू मेथड्स दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल विद द हेल्प ऑफ विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. नाउ द नेक्स्ट transportation is of the food and other substances in plants. जैसे हम लोगों को खाने के साथ पानी होना है वैसे प्लांट्स को भी खाना और पानी होना है. अब पानी पहुंचाने का काम तो जाइलम ने कर दिया है, अब खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम, ये दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू जो प्रेजेंट है वो करता है. सो व्हाट इट डज, इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन पार्ट दैट इज लीव सरफेस. फोटोसिंथेसिस करके जो भी खाना प्रिपेयर किया जाता है उसे हर सेल तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जो भी एक्सेस फूड बच जाएगा उसे स्टोर किया जाता है. दिस एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. This process of transporting the food to each cell and storing the excess food is known as translocation. ये ट्रांसलोकेशन किया जाता है with the help of phloem. Now how the phloem will do this? So phloem क्या करेगा?
इट यूजेस बोथ मूवमेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब देखिए लीफ जो है वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, प्लांट का किचन है। अब यहाँ एक बार फूड होने के बाद उसको पूरे प्लांट में सर्कुलेट करना है, उसे रूट्स तक पहुँचाना है, स्टेम्स तक पहुँचाना है, उसे फ्लावर्स तक पहुँचाना है, बड्स तक पहुँचाना है, फ्रूट्स तक पहुँचाना है। तो फ्लोएम को दोनों तरह के मूवमेंट्स करने होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट ताकि फ्रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स तक पहुंच जाए, और डाउनवर्ड मूवमेंट ताकि स्टेम, रूट्स तक पहुंच जाए, ब्रांचेस तक पहुंच जाए। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाला काम होता है। सो दैट्स वाई फ्लोएम इट इज़ using ATP molecule. We all have studied in lower class. ATP means adenosine triphosphate. It is the energy rich molecule जो माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम इट इज़ नोन एज द energy cell or the energy powerhouse of the cell. So whatever food which is needed to be transported, it is transported by phloem using ATP molecule. As soon as you utilizes ATP molecule, so concentration of water decreases. जैसे ही पानी का concentration वहाँ कम होने लगा है, वाटर डिफ्यूजन मेथड से उस सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। डिफ्यूजन हमने सबने पढ़ा है, that is the movement of the liquid from higher concentration to lower concentration. अब जैसे ही वाटर मूव हो रहा है डिफ्यूजन मेथड से, वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड होने के बाद वो क्या करेगा, बाजू वाले सेल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे ही बाजू वाले सेल पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो फ्लोएम क्या करता है, लो प्रेशर वाला जो सेल है वहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरह से फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सेल टू सेल, and so the food is transported with the help of phloem. So it is a energy requiring process. So it is using the ATP molecules. अब जो भी excess of food store किया जाता है stems में या seeds में, ये जब ब्लॉसमिंग होता है, जब नए फूल आते हैं, नई कलियाँ आती हैं, तब ये एनर्जी उन पार्ट्स को प्रोवाइड की जाती है और नए फूल, नई पत्तियाँ, नई पंखुड़ियाँ प्लांट्स के अंदर में डेवलप्ड होती है। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स द प्लांट्स दे हैव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड in their body part. So I hope you have understood this concept of transportation of water and food in the plants. So thank you very much.